Chapter 1, A Letter to God, J.L. Fuentes. Taken from Class 10, Subject English, Book First Flight. Before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. वे कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? इस कहानी में इस प्रश्न को नाजुक तरीके से पूछा गया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos. Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continues. Before you begin to read it, लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। 100 पैसों की मांग करता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या परमेश्वर उसे पैसे भेजता है? सोचिए कि इन सवालों के आपके क्या जवाब होंगे। और इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें, अनुमान लगाइए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी घाटी में एकमात्र यह घर एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। उस ऊंचाई से कोई व्यक्ति एक नदी और पके हुए मकई के क्षेत्र को बिंदीदार फूलों के साथ देख सकता था, जहां हमेशा एक अच्छी फसल होने का भरोसा रहता था। पृथ्वी की एकमात्र जरूरत एक बारिश या कम से कम एक बौछार थी। पूरी सुबह के दौरान लेंचो, जो अपने खेतों से गहराई से परिचित था, ने और कुछ नहीं किया था, केवल उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखता रहा था। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. हे औरत, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। भोजन तैयार कर रही महिला ने जवाब दिया, हाँ, भगवान की इच्छा है। वरिष्ठ लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन सभी को कहकर नहीं बुलाया कि डिनर के लिए आओ। यह भोजन के दौरान ही हुआ था, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ों को आते देखा जा सकता था। हवा ताज़ी और मधुर थी। आदमी के पास बाहर जाकर अपने शरीर पर बारिश महसूस करने का आनंद लेने के अलावा कोई अन्य कारण नहीं था। और जब वह लौटा तो उसने कहा, ये आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं हैं, वे नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 पैसे के टुकड़े हैं और छोटी 5 पैसे के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उसने अपने फूलों सहित पके हुए मकई के क्षेत्र को बारिश के एक पर्दे में लिपटा हुआ माना। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ ही बहुत बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नई चांदी के सिक्कों के समान थे। लड़के बारिश में भीगते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। ड्रेप्ड मीनिंग कवर्ड विथ क्लोथ, लोकस्ट meaning insects which fly in big swarms, groups
and destroy crops. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. आदमी ने कहा, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। मुझे आशा है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। यह जल्दी से नहीं गुजरा। 1 घंटे तक घर, बगीचे, पहाड़ी क्षेत्र, मकई के खेत, पूरी घाटी पर ओले बरसे। खेत सफ़ेद था, जैसे कि नमक से ढका हुआ था। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रह गया था। मकई पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। पौधों से फूल झड़ गए। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान गुजर गया, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, टिड्डियों के एक झुंड ने इससे अधिक छोड़ दिया होता। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. इस साल हमारे पास कोई मकई नहीं होगी। वह रात दुख भरी थी। हमारे सभी काम का कुछ नहीं मिला। कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। हम सब इस साल भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहने वाले सभी के दिलों में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इतना परेशान मत हो, भले ही यह एक कुल नुकसान की तरह लगता है। याद रखें, कोई भी भूख से नहीं मरता है। That's why they say no one dies of hunger. इसलिए वे कहते हैं कोई भी भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. पूरी रात भर लेंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान की मदद। जिनकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के मन की गहराई में क्या है। लेंचो एक आदमी के रूप में एक बैल था, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार भोर में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और मेल में डालेगा। यह भगवान को लिखे पत्र से कम नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm, उसने लिखा, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत में फिर से बीज बो सकूं और जीवित रह सकूं जब तक फसल आती है। क्योंकि ओलावृष्टि, that is hailstorm, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and, still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा, पत्र को अंदर रखा और फिर भी परेशानी में शहर चला गया। पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र पर टिकट चिपकाकर उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वर्ड मीनिंग, कॉन्साइंस मीनिंग एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, पैसो मीनिंग अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, एमिएबल मीनिंग फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing.
But almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." एक कर्मचारी जो डाकिया था और पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, अपने बॉस के पास जोर से हंसते हुए गया और उसे भगवान के लिए खत दिखाया। एक डाकिया के रूप में अपने पूरे कैरियर में उसे कभी उस पते की जानकारी नहीं थी। पोस्टमास्टर, जो एक मोटा मिलनसार बंदा, भी जोर से हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर रखकर टिप्पणी की, "क्या विश्वास है! काश मुझे उस आदमी का विश्वास मिलता जिसने यह पत्र लिखा था। भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू करना।" So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. इसलिए भगवान में लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर को एक विचार आया, पत्र का जवाब देना। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका जवाब देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज से कुछ ज़्यादा चाहिए। लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, उसने खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया और उसके कई दोस्त दान के एक कार्य के लिए कुछ देने के लिए राजी हो गए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with a letter containing only a single word as a signature, God. उसके लिए 100 पैसों की एक साथ इकट्ठा करना नामुमकिन था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेज पाया था। उसने लैंचो को संबोधित एक लिफाफे में पैसे डाल दिए और इसके साथ हस्ताक्षर वाला एकमात्र शब्द भगवान लिखकर पत्र भेजा। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले रविवार लैंचो पूछने के लिए समय से थोड़ा पहले आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। यह डाकिया खुद था जिसने उसे पत्र सौंप दिया, जबकि पोस्टमास्टर ने एक आदमी में संतोष का अनुभव करते हुए, जिसने एक अच्छा काम किया है, को अपने कार्यालय से देखा। लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. लैंचो ने पैसे देखने पर जरा भी आश्चर्य नहीं किया, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज हो गया। परमेश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था, ना ही वह लैंचो को अस्वीकार कर सकता था जो उसने अनुरोध किया था। वर्ड मीनिंग कंटेंटमेंट, meaning satisfaction. Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तुरंत लैंचो खिड़की के लिए चला गया, कागज और स्याही के लिए पूछने। सार्वजनिक लेखन तालिका पर उसने लिखना शुरू कर दिया। अपने माथे की बहुत झुर्रियों के साथ वह अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किया था प्रयास की वजह से। जब उसका लिखना समाप्त हो गया, वह खिड़की के पास गया, वहां से एक स्टैम्प को खरीदा और उसको लिख करके अपनी मुट्ठी के झटके से उसे लिफाफे से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks." लैंचो। जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिर गया, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए चला गया। उसने कहा, "परमेश्वर, मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुँचे। मुझे बाकी भेजें।
क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन मेल के ज़रिए मुझे मत भेजो क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाशों का गुच्छा है। लेंचो। So friends, our story is complete. Now let's move on to the poem. Poem Dust of Snow. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Robert Frost. Glossary. Hemlock, a poisonous plant or tree with small white flowers. Rude, meaning held in regret. Summary of the poem. कवि परेशान है और हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा है। अचानक पेड़ पर बैठा एक कौवा पेड़ को हिला देता है और पेड़ से बर्फ के बारीक कण कवि पर गिरने लगते हैं। बर्फ का कोमल, चिकना और ठंडा स्पर्श कवि के मूड को उदास से खुशी में बदल देता है। वह शांत और तरोताज़ा महसूस करने लगता है। इस प्रकार एक साधारण सा क्षण बहुत बड़ा सिद्ध होता है और कवि के शेष दिन को झकझोरने और निराश होने से बचाता है। काला कौवा आमतौर पर मृत्यु और भय का प्रतीक है। चूंकि कौवा धर्म से नहीं जुड़ा है, यह विडंबना ही है कि इस कविता में वह बर्फ को हिलाकर एक अच्छा काम कर रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ओक, मैपल या देवदार के पेड़ का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने हेमलॉक के पेड़ को चुना, जो आमतौर पर अशुद्धता और विषाक्तता से जुड़ा होता है। हालांकि जहरीले हेमलॉक के पेड़ और उसकी शाखाओं को ढकने वाली खूबसूरत बर्फ एक खौफनाक कौवा हिला जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भयानक कौवे और जहरीले हेमलॉक पेड़ के तत्वों का उपयोग अच्छा करने के लिए करते हैं। शाखाओं से सफ़ेद, शुद्ध बर्फ को हिलाएं। अच्छा कार्य उस व्यक्ति को बनाता है जो आत्महत्या करना चाहता है। वह खुद को मारने के बारे में अपना मन बदल देता है। पोएम फायर एंड आइस. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Robert Frost. Glossary. Perish meaning die, suffice meaning be sufficient. Friends, our chapter is complete. We will do question answers in a separate video. Till then, take care and respect your elders. And thank you for watching.